Good morning to everyone. This is the sum we will be doing today in front of your screen. From the following trial balance of Deep Enterprises, prepare manufacturing account. We have already seen the format of manufacturing account. Manufacturing account, all factory related expenses will come, and we have to prepare trading. We have also seen trading account format and profit and loss account for year ended 31st December 2013, and we also need to prepare balance sheet as on the same date. So let us read the trial balance which is given in front of us. What is there? That is drawing. Drawing कहाँ पे आते हैं? What is drawing? Drawing means withdrawals made by the owner, and whatever withdrawal is made by the owner, it is deducted deducted through his capital. So ये capital में से less होता है. Yes, correct. It comes in the liability side and it is minus. It is deducted from the from the owner's capital. From the owner's capital हम ये drawing को minus करते हैं. Correct. Then there is manager salary. Manager is in the office. So profit and loss account, this should come. Manager salary 6,000. Then we have cash in hand. Cash in hand and cash in bank. Both are what? Asset, correct. Both are asset. So this will come in the asset side. Debtor also is a asset. So this will also come in the asset side. Patents. Patents means invention rights. When you make a invention, you have to register for its patent. Then you become owner of that invention. So patent also is a asset, intangible asset. Patent is an intangible asset. You cannot see the physically the invention, that you are the inventor. It is a document which gives you the right for that invention, whatever you invent. So this patent also is a intangible asset, intangible asset. Then we have plant and machinery. Plant and machinery also is an asset. Land and building also is an asset. Extension to building. What do you mean by extension to building? Suppose there was a 4-floor building. Now you have added 3 more floors. This becomes extension to building. 4 फ्लोर के बिल्डिंग को आपने 7 फ्लोर का कर दिया, तो दिस बिकम्स एक्सटेंशन टू बिल्डिंग. दिस इज ऑल्सो असेट. लैंड एंड बिल्डिंग में ही ऐड कर देंगे एक्सटेंशन टू बिल्डिंग. देन वी हैव वन मोर थिंग, लीगल चार्जेस फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग. आप असेट खरीदते वक्त आपको जो भी चार्जेस लगता है, जो भी कॉस्ट लगता है, वो हम असेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं. दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. मीन्स असेट को एक्वायर करते वक्त, असेट को परचेज करते वक्त कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हमें लगता है, तो वो एक्सपेंसेस को हम असेट के कॉस्ट में ही ऐड करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वी विल बी एक्सक्लूसिवली इन वन लेक्चर. आई विल बी डिस्कसिंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट करके एक चैप्टर है तुम लोग को. In 1 or 2 lectures, we will be able to wind that topic. It's a very small topic, but it is important for your exam point of view. तो वो चैप्टर हम लोग फाइनल अकाउंट्स होने के बाद या कभी भी वी विल टेक दैट चैप्टर, एंड बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, 1 or 2 lecture it we will be able to finish off that chapter. Then we have
परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। रॉ मटेरियल कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, एंड फैक्ट्री का सब एक्सपेंसेस इनकम्स हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करते। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कम्स इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल 1/1/2013, कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा रॉ मटेरियल है? 1/1/2013, raw material 1/1/2013. Yes, correct everyone. This is opening stock of raw material. Then we have opening stock of WIP. Then we have opening stock of finished goods. Raw material and WIP will come in manufacturing account. Finished goods opening stock will come under trading account. Then we have carriage inward. Carriage inward हम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के बाद ऐड करेंगे, because that is carriage inward is transportation expense related to purchase of raw material. Then we have wages and salary. This also will come in the manufacturing account because wages is given first. Wages पहले दिया है, मतलब wages का proportion ज़्यादा है as compared to salaries. That means, so what we will do, we will show the wages and salaries in the manufacturing account. Then we have factory expense also manufacturing account. Factory rent and rates also manufacturing account. Office expense P&L account. Office का related कुछ भी रहेगा तो that we will show in the profit and loss account. Printing and stationery, where will it come? Printing and stationery, where will it come? Printing and stationery will come in the profit and loss account. Printing and stationery will come in the profit and loss account. Then we have discount. Discount ये received है क्या, discount allowed है? Debit side में है, मतलब this is discount allowed. Discount received will be income. Income मतलब हम हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखेंगे. Yes, discount will come in the P&L account debit side because it's discount allowed. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मतलब इधर इट्स अ एक्सपेंस और इट विल बी अ असेट. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड ये या तो लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा, लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा. एंड ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मतलब या तो असेट होगा या तो एक्सपेंसेस होगा. The trial balance debit side, either we have expenses or we have asset. So printing and stationery, again P&L account. And what else we have? P&L account debit side में आएगा. Discount हो गया ना, P&L printing and stationery भी हो गया, discount भी हो गया. Advertisement expense है, P&L account. P&L account debit side. Bad debts P&L account. Goodwill किधर आएगा? Goodwill, where will goodwill come? Asset, correct, very good. Goodwill is what? Reputation of the business. Then we have capital. Capital will come under liability. देखो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड मीन्स ये क्या हो सकता है, ये या तो लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये हम जब डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे तभी P&L अकाउंट, जब डेटर का एडजस्टमेंट करेंगे दैट टाइम वी विल सी दैट वेयर इट विल कम व्हेन वी विल डू द एडजस्टमेंट. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, नो, ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स कभी डेटर से माइनस नहीं होता. दिस इज ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स. This will be adjusted against the new reserve for bad debts and the bad debts which is there in the trial balance.
तो वो सबके साथ ये एडजस्ट होता है, वो मैं बताती हूँ. While doing the working we will do, I will explain. Then we have purchase return less from purchase. Then we have sales, trading account में आएगा, sales will come in the trading account. Now all the items we have discussed. Now we will go to the adjustment. On 31/12/2013, stock were valued at raw material. Raw material will come in the manufacturing account. WIP का closing stock will come in the manufacturing account. Finished goods will come in the trading account. Now tell me, दूसरा इफेक्ट आएगा इसका, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? Where will the second effect of closing stock come? Asset side. The second effect of the closing stock will come in the asset side. Then we have outstanding expense. We have to mark the outstanding expense, correct? तो एडवर्टाइजमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं, एंड बिकॉज पेंडिंग है ये पे करना, हम लोग इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे? लाइबिलिटी साइड में. द सेकेंड इफेक्ट विल कम इन द liability side. So advertisement also there is adjustment outstanding, and printing and stationery में printing there is a adjustment. So इसके बाद stock of stationery, तो stationery में also there is a adjustment. So to understand वो and को मैं highlight से निकाल देती हूँ ताकि हमें समझ में आए. Printing also there is a adjustment, and stationery also there is a adjustment. They say stock of stationery on hand rupees 1000 on 31/12/2013, means they are saying there is a unused stationery, there is unused stationery on 31/12/2013 of 1000. Unused stationery is there of 1000. तो अनयूज्ड स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी. तो टोटल स्टेशनरी जो हमने परचेज किया उसमें 1000 का स्टेशनरी यूज नहीं हुआ, तो उसको हम लोग ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. तो इसको हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस करेंगे एंड असेट साइड में शो करेंगे. दूसरा इफेक्ट विल कम इन द asset side because we will use this stationery in the next year. ये स्टेशनरी को अभी अनयूज है पर नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, हम इसको फेंकेंगे नहीं, करेक्ट? फिर भी हैव प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रीसिएशन एंड पेटेंट में डेप्रीसिएशन. सो वी विल गो अबाउट प्लांट एंड मशीनरी को भी वी हैव टू हाईलाइट एंड पेटेंट को भी वी हैव टू हाईलाइट. Both there are adjustment. Depreciation is there. Then manager is entitled for a commission of 5% on net profit before charging his commission. Means we have a manager in the office. वो मैनेजर को सैलरी तो मिलता ही है because manager salary is there in the question. Manager salary, मैनेजर इज गेटिंग सैलरी एज वेल एज जितना भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट उसका 5% उसको कमीशन भी मिलेगा. तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में ही विल ऑल्सो गेट अ 5% कमीशन. तो दिस वी विल बी एबल टू डू ओनली एट द एंड. ये नेट प्रॉफिट जब हम लोग निकाल सकते एंड में, तो तभी हम जैसे हम लोग पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसका 5% कमीशन मैनेजर को देंगे, उसके बाद फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे. सो दैट वी विल डू लेटर ऑन. देन वी हैव इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाय ₹3000. ऑलरेडी रिजर्व फॉर बैड डेट्स है 6000, अभी इसको 3000 से और इंक्रीज करना है. तो 6 + 3 our reserve for bad debts will become how much? They have told increase reserve for bad debts by 3000. पहले 6000 था और 3000 इंक्रीज करो, means our reserve for bad debts will become 9000.
This 9,000 we will have to minus from the debtors. This 9,000 we will minus from the debtors. Interest on loan is of rupees 1,000 is still unpaid. Question में देखो, is there any interest? Loan is in the liability side. लोन यहाँ पे है तो इंटरेस्ट उसका इधर डेबिट साइड में, ये लोन हमने लिया है तो इस पे इंटरेस्ट हमें पे करना है. तो इज देयर एनी इंटरेस्ट इन द डेबिट साइड? चेक करो, इज देयर एनी इंटरेस्ट? नहीं है, मतलब पूरा इंटरेस्ट इज अनपेड, फुल इंटरेस्ट इज अनपेड, आउटस्टैंडिंग. सो लोन को हाईलाइट करते हैं ताकि वी रिमेंबर दैट देयर इज अ एडजस्टमेंट इन लोन, that is interest amount is there which is unpaid. So then what else we have? We have only that many adjustment is there. So we can start with the posting one by one. हम लोग posting start कर लेते हैं एक एक करके. Let us start the posting one by one. तो सबसे पहले what is given? Drawing is given. Drawing कहाँ पे आते हैं? ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होता है, सो विल राइट कैपिटल. कैपिटल में से एक लाइन छोड़ देते बिकॉज वी विल ऐड द नेट प्रॉफिट और माइनस द नेट लॉस. उसके बाद लेस करते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? ड्रॉइंग. जस्ट आई विल इंक्रीज द साइज. ओके, सो ड्राइंग का अमाउंट कितना है? लेट अस सी. ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग इज 30,000. सो वी विल इनर कॉलम में वी विल राइट इन द ब्रैकेट 30,000 बिकॉज लेस करना है. इसके बाद व्हाट इज देयर आफ्टर ड्राइंग? मैनेजर सैलरी. मैनेजर इज इन द ऑफिस 6,000. So manager salary will come in the profit and loss account. So trading account में एक ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस का ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल के लिए रहेगा. उसके बाद इट विल बी टू मैनेजर सैलरी. हाउ मच इज द अमाउंट वी सॉ? 6,000. and we will just increase the size. Okay, now we will again go up and see और क्या expenses है, sorry और क्या है. What is the next item given? Manager salary was an expense. Now we have, tell me, manager salary P&L अकाउंट में आएगा इसलिए मैंने P&L अकाउंट में लिखा. अब we have कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. किधर आएगा? दोनों. वन इज 2,000 एंड अनदर वन इज 35,000. असेट में आएगा. सो वी विल गो टू द असेट साइड एंड वी विल राइट कैश इन हैंड, कैश इन बैंक. कितना अमाउंट मिला? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक. कैश इन हैंड इज 2,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली लास्ट कॉलम. एंड कैश एट बैंक इज 35,000. ये दोनों भी वी हैव रिटन. नाउ लेट अस गो एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज डेटर 95,000. डेटर में देयर इज एडजस्टमेंट बट वी हैव नॉट हाईलाइटेड. डेटर को भी हाईलाइट करना पड़ेगा. इट इज हैविंग अ एडजस्टमेंट 95,000. सो आई विल गो टू द, वेयर डज डेटर कम? डेटर कम्स इन द asset side. So डेटर inner column में we will have to write because it has a adjustment 95,000. डेटर के बाद what is the next one we have? डेटर के बाद, day after डेटर we have patent 4,000.
Plant and machinery 1 lakh, both are having adjustment. Patent 4,000, plant and machinery 1 lakh. So I will write patent एक लाइन छोड़ के we will write 4,000, and here also we will have to leave one line because adjustment is there. Plant and machinery 1 lakh. So I will write here plant and machinery 1 lakh. I will leave one line because adjustment is there. इसके बाद what we have? इसके बाद we have land and building 2 lakh, extension 20,000, legal charges 5,000, 2 lakh 20,000 5,000. ये पूरा हमें लिखना है. So what we will do? ये पूरा we will have to write land and building, extension and legal charges. So what we will do, एक लाइन छोड़ के land and building, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए तो इनर कॉलम में ही इसको टोटल कर लेते और आउटर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख इस लैंड एंड बिल्डिंग. देन वी हैव एड extension is 20,000. Now what we can do, we can extension is 20,000 and add legal charges. Add legal charges. Legal charges. So legal charges also, legal charges is 5,000. So when we add all this, how much we get? 2,25,000. 2,25,000 is building. उसके बाद what is there? What is there? Just go above. After building, we have purchase of raw material 1 lakh. Purchase of raw material means where manufacturing account. यहाँ पे कैसे बताएंगे? यहाँ पे हम लोग बताएंगे हमारा जो पूरा ये है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स फैक्ट्री रिलेटेड. फैक्ट्री में कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है? फैक्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए भी रिक्वायर मटेरियल. सो मटेरियल में हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन ओपनिंग स्टॉक अभी तक तो वी हैव नॉट सीन, तो उसको वैसे ब्लैंक रख के यहाँ अभी हमें क्या मिला? एड परचेसेस ब्रैकेट में वी कैन राइट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. हाउ मच इज द अमाउंट वी सॉ? द अमाउंट व्हाट वी सॉ इज 1 लाख. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमने देखा 1 लाख है. इसके बाद वी हैव opening stock of raw material 40,000, WIP 75,000, finished goods 95,000. All opening stock 40, 75, 95. तो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसके नीचे आई विल राइट 40,000. 40,000. देन WIP का 75,000 है. WIP का मैं थोड़े नीचे लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में WIP. तो ये डायरेक्टली वी कैन राइट इन द लास्ट कॉलम 75,000. फिर वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो हियर टू ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में we can write finished goods and the amount was how much? Finished goods का amount कितना था? Just once again I want to check. Raw material 95,000. 75, 95. 75 तो लिखा.
अब लिखना है 95,000. Now we will go about, and after raw material, sorry, after opening stock of raw material, WIP, finished goods, we have carriage inward 8,000. So carriage inward जो है, carriage inward, we will add carriage, add carriage inward is how much? 8,000. इसके बाद व्हाट वी हैव आफ्टर कैरेज इनवर्ड, वी हैव वेजर सैलरी, फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजर सैलरी इज 90,000. बताओ वेजर्स एंड सैलरी किधर आएगा? हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बोलते वक्त डिस्कस किया. वेजर्स एंड सैलरी विल कम इन द मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ लिखेंगे टू वेजर्स. जो भी पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो पूरा अभी हम वी आर राइटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. 90,000 था ना. वेजर्स एंड सैलरी 90,000. wages and salary 90,000. I'll once again check whether I am correct. Yes, wages and salary 90,000. Factory expense is there 8,000. Factory rent and rate is there 10,000. Factory expense 8,000. So factory expense लिखते हैं टू फैक्ट्री का सब कुछ. नो फैक्ट्री एक्सपेंस बोला है. फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग. फैक्ट्री एक्सपेंस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग. फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी रहेगा इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग. तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिखा. इसके बाद वी हैव फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स रेट्स 10,000. फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 10,000. सो यहाँ लिखेंगे टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट. टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट कितना 1,000? 10,000 था ना. वी विल राइट डाउन 10,000. इसके बाद व्हाट इज देयर? इसके बाद वी हैव ऑफिस एक्सपेंस. We have office expense 5,000. Office मतलब P&L account. So we will go to the P&L account and write to office expense 5,000. No adjustment 5,000. No adjustment मतलब this will come in the last column 5,000. and ये भी हमें लास्ट कॉलम में लिखना. इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 6,000. Now, after factory expense, we have printing stationery 10,000. There is a adjustment. So एक लाइन we have to यहाँ पे एक नहीं दो एडजस्टमेंट है. प्रिंटिंग में भी एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी में भी एडजस्टमेंट है. देयर इज एडजस्टमेंट इन प्रिंटिंग ऑल्सो, देयर इज एडजस्टमेंट इन स्टेशनरी ऑल्सो. तो इसलिए व्हाट वी विल डू, वी विल लीव 3 लाइन्स. अगर एक एडजस्टमेंट रहेगा तो 2 लाइन. अगर 2 एडजस्टमेंट रहेगा 3 लाइन. 3 एडजस्टमेंट रहेगा 5 लाइन. मीन्स एज पर ऑड नंबर्स हमें लाइन छोड़ना है. तो 2 एडजस्टमेंट है 3 लाइन, 3 एडजस्टमेंट है 5 लाइन, 4 एडजस्टमेंट है 7 लाइन. मतलब ऐसे हमें लाइंस छोड़ना है. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखते हैं. सो वी विल राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी to printing and stationery. How much? Printing and stationery कितना है? I'll again have to check. Printing and stationery 10,000. Printing and stationery 10,000. लेकिन इसके नीचे 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा because we have 2 adjustment. Now what we will do, ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है देखने जाते हैं. नेक्स्ट आफ्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी हैव डिस्काउंट 6,000. सो वी विल राइट टू डिस्काउंट because adjustment is not there.
We will directly write in the last column. And after discount, which is the next adjustment, advertisement. It is also, sorry, after discount, what is the next item? Advertisement. This also has adjustment. So 5,000 advertisement 5,000. So यहाँ पे I will write to advertisement, इनर कॉलम में 5,000. इसके बाद व्हाट इज देयर आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज देयर बैड डेट्स अभी नहीं लिखेंगे, ये पूरा बाद में करेंगे. गुडविल डेटर एडजस्टमेंट के टाइम पे पूरा बैड डेट्स भी बाद में करते. गुडविल 4,000. गुडविल किधर आएगा? Goodwill comes in the asset. Goodwill 4,000. Now after goodwill we come to the other side. क्या है हमारे पास? कैपिटल 5 लाख, क्रेडिटर 1 लाख एंड लोन 80,000. क्रेडिटर, कैपिटल एंड लोन तीनों एक ही जगह पे आते हैं. कैपिटल आई नो इज हाउ मच? कैपिटल इज 5 लाख, क्रेडिटर इज 1 लाख. सो हम क्या करेंगे इधर? क्रेडिटर is how much? Creditor is 1 lakh. Creditor के बाद we also have loan इधर, because loan is how much? 80,000. एंड लोन में एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा. लोन को देखो हाईलाइट किया, इट हैज से एडजस्टमेंट. देन रिजर्व फॉर बैड डेट्स बाद में करेंगे. परचेस रिटर्न इज देयर. परचेस रिटर्न हमें माइनस करना पड़ेगा, हमने सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस किया है. तो परचेस रिटर्न यहाँ पे परचेस रिटर्न क्या करना है? लेस परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न का अमाउंट क्या है? विद इन ब्रैकेट हमें लिखना है 7,000. सो वी विल राइट हियर 7,000. देन वी विल गो टू सेल्स. क्वेश्चन में दिया है बाय सेल्स. सेल्स इज हाउ मच? 2,64,000 given in the question. 2,64,000. With this our posting is done. Now we will come to the adjustment. First adjustment, raw material closing stock. Raw material कितना है? closing stock कितना है? 50,000. So we'll write here less closing stock, ब्रैकेट में raw material, and we will write in the bracket 50,000. Then we will get the outer column. इसको outer column में कितना आएगा बताओ? outer column में कितना आएगा? 1,48,000, 1,41,000, 1,41,000 minus 50,000. कितना आंसर आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी? 40 plus 1 lakh plus 8,000 minus 57,000. Are you getting 91,000? Correct answer 91,000. So, इसके बाद ये तो हो गया. इसके बाद एक और जगह WIP का लिखना है. बाय क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखेंगे WIP. कितना अमाउंट है? 80,000. फिर 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट फिनिश्ड गुड्स
FG, finished goods, 1 lakh. We will write 1 lakh. इसके बाद व्हाट इज द, इसका एक और एडजस्टमेंट 50, 80, 1 लाख. वी विल गो टू द असेट, एंड वहां जाके वी विल राइट क्लोजिंग स्टॉक. उसके नीचे रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स 50,000, 80,000 एंड 1 लाख. तो ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख. इज इट करेक्ट? 2,30,000. दोनों इफेक्ट दे दिया. नाउ गो टू द सेकेंड एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट 500, प्रिंटिंग 300. आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग है. और फाइनल अकाउंट का रूल क्या है? फाइनल अकाउंट का रूल है दैट हम हमेशा जो भी करंट ईयर को बिलोंग करते हैं उसको हमेशा भी ऐड. ये एडवर्टाइजमेंट करंट ईयर का कितना पेंडिंग है? आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग है. हाउ मच? 500. Advertisement is 500, so this becomes 5,500. and printing कितना आउटस्टैंडिंग है? add आउटस्टैंडिंग कितना? 300. so sorry 300. so this यहीं पे, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है, यहीं पे लिखना है 10,300. Let me do proper the alignment. That now इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट 300 एंड 500 अभी तक पे नहीं किया, तो कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग. कितना है? 500 एंड 300. 500 एंड 300 दोनों को ऐड किया तो इट इज कमिंग 800. दोनों को ऐड किया तो इट इज कमिंग 800. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड ₹1,000. तो स्टेशनरी कितना हैंड में है, यूज नहीं हुआ? इट इज 1,000. सो दैट इज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज हाउ मच? ब्रैकेट में 1,000. तो ये माइनस करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9,300. ये अलाइनमेंट प्रॉपर करते हैं. सो 9,300. और इसका दूसरा इफेक्ट विल कम हियर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. कोई भी क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स अनयूज्ड स्टेशनरी. अनयूज्ड है, ये स्टेशनरी है जो कंपनी ने यूज नहीं किया, जो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. जितना प्रिंटिंग, जितना स्टेशनरी खरीदा, उसमें से स्टेशनरी का 1,000 इज पेंडिंग, सॉरी इज अनयूज. विल दो असेट में बताया, और वहां से जहां पे यूज नहीं हुआ है वहां पे से माइनस किया. Now what is the next adjustment? Next adjustment is depreciation, plant and machinery 10% and patent 20%. So plant and machinery and patent में
प्लांट एंड मशीनरी 10% है, तो लेस डेप्रीसिएशन 10%, कितना होगा 1 लाख का 10%? 10,000 ना, so this becomes 90,000. पेटेंट में भी निकालना है, लेस depreciation 20%. 20% is how much? 20% of 4,000 is 800, correct? 800. So यहाँ पे outer column में we will get 3,200. So now patent is also invention. Factory में invention होगा and plant and machinery भी वहाँ पे use होता है. तो दोनों depreciation manufacturing account में लिखेंगे. to depreciation patent और दूसरा plant and machinery. So we will show here इसका 800, इसका 10,000, दोनों को ऐड करने पे we get 10,800. So ये सेकेंड इफेक्ट भी दे दिया. Now what is the next adjustment? नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये मैनेजर्स कमीशन, ये तो लास्ट में ही करना है. अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द रिजर्व ऑफ बैड डेट्स बाय 3,000. सो बैड डेट्स का रिजर्व 3,000 से इंक्रीज करना है. पहले कितना था रिजर्व, पहले 6,000 था, अभी 3,000 और इंक्रीज करना है. तो डेटर में से कितना लेस करना पड़ेगा, वेयर इज द डेटर, लेस RDD. हमें कितना लेस करना है, 6,000 प्लस इंक्रीज करने बोला है 3,000 से. सो यहाँ पे आएगा 9,000. तो लेस करो 9,000, हाउ मच यू विल गेट इन द आउटर कॉलम, हाउ मच यू विल गेट इन द आउटर कॉलम, 86,000, करेक्ट. 95,000 minus 9,000, 86,000. Now I want to show you here. देखो हमारे पास बैड डेट्स है, हमारे पास बैड डेट्स है, प्लस अगर कुछ FRBD मतलब क्या, दिस इज गिवन इन द एडजस्टमेंट इन अमाउंट, और हम ऐड करते हैं RDD. ये क्या होता है, ये हमें एडजस्टमेंट में परसेंटेज में दिया रहता है. ये तीनों को हम कंपेयर करते हैं, किससे, ये तीनों को हम कंपेयर करते हैं ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट से, जो कि दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में. किधर दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड. किधर दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड. तो ये क्वेश्चन में हमारे पास बैड डेट्स है एंड वी हैव FRBD, पर मैंने RDD करके लिखा है, नो प्रॉब्लम. तो ये दोनों हमारे पास अमाउंट कितना है कंपेयर करना. ये जो ORBD है, ORBD मतलब क्या, ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये 6,000, मतलब हमने पहले से कितना पैसा साइड में रखा है, हमने 6,000 पहले से साइड में रखा है. हमने कितना 6,000 लास्ट ईयर ही साइड में रखा है कि अगर कोई बैड डेट्स हुआ तो हम लोग यहाँ से पैसा सेटल करेंगे करके हमने पहले से प्रोविजन करके रखा है. हमने लास्ट ईयर ही प्रोविजन करके रखा है. तो अगर 6,000 तक लॉस हुआ तो हमें टेंशन नहीं है, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो टेंशन है. तो हमारे पास बैड डेट्स कितना है क्वेश्चन में, देखो हाउ मच बैड डेट्स वी हैव,
वी हैव 4,000 का बैड डेट्स एंड न्यू बैड डेट्स कितने का है 9,000। तो हमें टोटल लॉस कितने का हुआ 4,000 प्लस 9,000 कितना होता है 4,000 प्लस 9,000 इज 13,000। हमारे पास लॉस हुआ है 13,000 का और हमने पहले से साइड में कितना पैसा रखा है 6,000। तो हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करेंगे कम टू द पीएनएल अकाउंट कम टू द पीएनएल अकाउंट पीएनएल अकाउंट में जाएंगे और यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स कितना बैड डेट्स है बैड डेट्स कितना है 4,000 और उसके बाद ऐड करेंगे जो हमारे पास है न्यू आरडीडी कितना है 9,000 और इतने में लेस करेंगे जो हमारे पास ओल्ड आरडीडी है कितने का है ये 6,000 मतलब 13,000 का जो लॉस हुआ 13,000 का जो लॉस हुआ उसमें 6,000 तो हमने पहले से साइड में रखा है। तो हमें एक्चुअल लॉस कितने का हुआ एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 7,000 का। दैट ओनली वी विल शो हियर 4,000 का हमें बैड डेट्स हुआ था 9,000 का हमें न्यू बैड डेट्स हुआ एडिशनल बैड डेट्स हुआ बट हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी 6,000 साइड में रखा था तो अभी हमें सिर्फ 7,000 ही पे करना पड़ेगा बाकी का पूरा एडजस्ट हो गया बिकॉज हमने लास्ट ईयर ही 6,000 साइड में रखा था। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव लास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1,000। सो हमें क्या करना पड़ेगा एक तो हमने ऐड करना पड़ेगा करेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है ये 1,000 तो ये कितना हो जाएगा 81,000। एक और इफेक्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इसको मैंने डेबिट साइड में क्यों लिखा क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें पे करना है एंड जो भी हम पे करते हैं खर्चा है एक्सपेंस है हम डेबिट साइड में दिखाते हैं एंड इनकम कुछ रहेगा तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते करेक्ट। सो नाउ हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया सिवाय एक मैनेजर्स इंटरेस्ट का। तो व्हाट वी विल डू प्लीज टेक इसका टोटल देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टोटल करो डू द टोटल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट how much are you getting 2,84,800 2,84,800। first we will solve the question 84,800 उसमें से 80 माइनस करो we will get by trading account बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना अमाउंट है 2,04,800 इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बाई ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा 2 कहाँ से आया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और
इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अमाउंट क्या है, 2,04,800। इसके बाद close this account also, close this account also. How much you're getting, 3,64,000, 3,64,000. How much is the gross profit? Give me the answer of gross profit. Gross profit is 64,200. इसका दूसरा इफेक्ट इधर आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट bought down 64,200. नाउ इसको 64,200 को मैनेजर्स रेमुनरेशन बाकी है, उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। तो ये सबको माइनस करो, ये सबको माइनस करो 64,200 से, और जो आएगा वो हमें टू मैनेजर्स रेमुनरेशन भी लिखना। मुझे सिर्फ आंसर बताओ, मैनेजर्स कमीशन ये बाकी है, दिस वन इज लेफ्ट आउट। वो कैसे निकालना है मैं बताती हूँ, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। हाँ, टेल मी, 64,200 में से 6,000, 5,000, 9,300, 6,000, 5,500, 7,000, how much you are getting, 24,400. You are getting 24,400. तो आई एम गोइंग टू द वर्किंग नोट। हमें क्या चाहिए, वी वांट मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन के लिए हमें मिला 24,400। ये कैसे मिला 24,400, ये मिला हमें 64,200 में से जब हमने माइनस किया 39,800 जो कि डेबिट साइड का टोटल था, तो ये हमने माइनस किया तो हमें मिला 24,400। वी गॉट 24,400। कितना परसेंट कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में मैनेजर को, लुक इनटू द क्वेश्चन। मैनेजर को कितना कमीशन देना है, 5%। मैनेजर को 5% का कमीशन देना है। सो वी विल राइट हियर 5%। कितना होता है, आंसर बताओ कितना होता है, 1,1,1,2,2,0। तो ये कमीशन हम यहाँ लिखेंगे, इतना सैलरी के अलावा इतना कमीशन मिला है, ये पेबल है। कमीशन अभी तक पे नहीं हुआ, अगर पे हुआ होता तो ट्रायल बैलेंस में आता। दिस इज पेबल, एडजस्टमेंट है तो एक और इफेक्ट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना अमाउंट है, 1,220। तो इसके बाद अभी बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये भी माइनस करो। 24,400 में से 1,220 माइनस करो, यू विल गेट 23,180। तो 23,180 इज द, फिर से अगर हम लोग निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 23,180 मैनेजर कमीशन को भी माइनस करके। तो इसके बाद इधर ऐड करेंगे नेट profit. So net profit is how much, 23,180
ये माइनस करने के बाद हाउ मच यू विल गेट? You will get 44,93,180. 4,93,180, and take the total of the liability side and asset side. You should get 6,76,200. 6,76,200. Just check this whether you're getting this. Whether you're getting this, just check whether you're getting this. With this, the sum is done.